Hey, good morning class. How are you? I hope you all are fit and fine in your home and doing your job in proper manner. So dear student, today we are going to discuss about the graph, domain and range of inverse trigonometric function. In my last Google Meet and video lecture, I have discussed about the domain, range and graph of trigonometric functions. Now I am going to discuss about the graph, domain and range of inverse of the trigonometric function. Okay, so without wasting the time, let's begin. So the very first function I am taking here is y is equal to sine inverse x. Okay, in my last video and Google Meet also I have discussed what is the graph of sine x, what is the domain and range of sine x, which is a trigonometric function, and I also discussed why sine is a invertible function. कैसे हम sine को invertible function दिखाएंगे, we also discuss about it, how we will make it 1 and onto function. So now it is clear that all trigonometric ratios are invertible and hence they are invertible, so they consist of their inverse. Okay, that's why we are looking here the graph and domain and range of sine inverse x. So basically the domain and range, the domain of this function is, since it is an invertible function, it is inverse of sine x. As we know, the domain and range of sine x, the domain of sine x is minus pi by 2 to pi by 2 and the range of sine x is minus 1 to 1. So since this is the inverse of this function, है ना, sine inverse x is the inverse of sine x, है ना, so its domain will be minus 1 to 1 and the corresponding range will be minus pi by 2 to pi by 2. Okay, and if you are talking about the graph of both the function, here I am mentioning the graph of inverse trigonometric function, which is sine inverse x, and here we will talk about the graph of sine x. So as we all know, the graph of sine x we already discussed in our last Google Meet. Okay, so the graph of sine x is, since this is sine x, so domain will be the value of x, so domain will exist on the x axis, and here this will be written as x is equal to sine inverse y. Okay, so the domain will exist on the x axis, so it is origin, so 0, let it be pi by 2, let it be pi, let it be 3 pi by 2, let it be 2 pi, and here this one minus pi by 2, minus pi, minus 3 pi by 2. Okay, and a little bit increasing this x axis, let it be minus 2 pi. Now we all know that in the case of sine x, okay, at pi by 2, let it be range, है ना, range is defined on y axis, ठीक है ना, because y is equal to sin x, so x will represent a domain and corresponding value of x will give you the value of y, which is called as range. So range is from minus 1 to 1, so range will be shown on y axis. So now see, at 2 pi sine gives 0, at pi, okay, it gives 0, because we all know that since sine and pi equal to 0 where n belongs to z, means for all integer multiple of pi sine, or for all integer multiple of pi sine gives us 0. So ये सारे पॉइंट्स पे 0 हो जाएगा. नाउ सी, साइन माइनस 3 पाई बाई 2 गिव्स यू 1, सो लेट इट बी, यहाँ पे ये वैल्यू होगी इसकी, माइनस पाई बाई 2 पे माइनस 1 देगा, 0 पे 0, पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1. नाउ मीट ऑल दीज पॉइंट्स सो दैट यू विल गेट अ ग्राफ ऑफ साइन एक्स. सो द ग्राफ ऑफ साइन एक्स इज अ zigzag manner, है ना. You can easily check the range of sin x. Okay, the range of sin x is existing between minus 1 and 1. आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये प्लस 1 से ऊपर नहीं जा रहा है और माइनस 1 से नीचे की वैल्यू को कैरी नहीं कर रहा है. सो द रेंज इज फ्रॉम minus 1 to 1. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, विच इज साइन इनवर्स x. ओके, x is equal to sin inverse y. Why? Because if y is equal to sin inverse x, sorry, sin x, then corresponding value of x will be, this sign will shift towards the left hand side. तो जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स y. ओके, दिस इज द इनवर्स ऑफ साइन x. नाउ सी, डोमेन विल रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू, करस्पॉन्डिंग आउटपुट किसकी मिल रही है, x की. इनपुट किसका है, अब यहाँ पे इनपुट है y और आउटपुट है x. सो डोमेन विल रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस एंड करस्पॉन्डिंग आउटपुट मीन्स रेंज विल रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस. सो इसका जो डायग्राम बनेगा बेटा वो कैसा बनेगा, x axis, y axis. Okay, now this is plus 1 because we have to show range on x axis and domain on
y axis. So let it be pi by 2, let it be pi, let it be 3 pi by 2, let it be 2 pi. Similar manner minus pi by 2, okay, minus pi, minus 3 pi by 2 and minus 2 pi. Now check, pi by 2 पे हमें क्या वैल्यू मिलती है बेटा 1, एट पाई 0, एट 3 पाई बाई 2 -1, सो -1 की डायरेक्शन में जाएंगे ये पॉइंट, 2 पाई पे 0, 0 पे 0 है ना, माइनस पाई बाई 2 पे -1, दिस इज द पॉइंट, पाई पे पाई चाहे निगेटिव हो पॉजिटिव हो 0, -3 पाई बाई 2 पे +1 है ना, +1 एंड 2 पाई पे 0. नाउ मीट ऑल दीज पॉइंट्स, देन यू विल गेट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x. ओके, नाउ यू कैन चेक है ना, द रेंज इज लाइंग बिटवीन -1 to 1 है ना, यहाँ पे भी रेंज कहाँ लाई करती है, बिटवीन -1 to 1. योर रेंज इज एग्जिस्टिंग बिटवीन -1 to 1 एंड द डोमेन इज एग्जिस्टिंग ऑन y एक्सिस. तो ये जो ग्राफ है कैसे मिला, अगर हम ध्यान से सोचें तो ये एक्सिस को अगर हम रोटेट कर दें, इफ यू आर रोटेटिंग द एक्सिस है ना इन अ क्लॉकवाइज मैनर, ठीक है, देन यू विल गेट द ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स है ना. और अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, देन व्हाट विल वी सी हियर, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सभी और समझने की कोशिश करेंगे इसे. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस. एक ग्राफ जो मेरे पास आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, एंड द अनदर ग्राफ इज लाइक दैट है ना. सो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालूंगा ऐसे है ना, वी ऑल नो दैट दिस इज एन आइडेंटिटी लाइन है ना, ये लाइन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कर्व, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू x है ना. आपको पता होगा दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन विथ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, दिस इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन है ना. y इज इक्वल टू x इसका क्या होता है, लाइन, y इज इक्वल टू x की लाइन होती है ये. तो आप देख पा रहे होंगे कि y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, इन दोनों ग्राफ के मिडिल से होके जा रही है. इट मीन्स वी कैन से दैट द लाइन y इज इक्वल टू x इज the middle of all these two graphs and it is work as the image है ना. ये लाइन के इधर को आप देखेंगे तो ये ग्राफ है किसका, साइन इनवर्स y का, और ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स x का, ठीक है ना. तो जो साइन इनवर्स y है ये साइन इनवर्स x के लिए किसका काम कर रहा है, इमेज का काम कर रहा है, या फिर ये समझ लीजिए कि साइन इनवर्स x विल बी द इमेज ऑफ साइन इनवर्स y. इसकी इमेज यहाँ और इसकी इमेज करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगी, और इनकी इमेज जो बनाने वाला लाइन है, जिस लाइन के आर पार इनकी इमेज बन रही है, ठीक है, वो लाइन कौन सी है, आइडेंटिटी लाइन डिनोटेड बाय y इज इक्वल टू x. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट. नाउ द सेकंड कर्व इज the second curve. Here I am writing all trigonometric all inverse trigonometric है ना, inverse trigonometric function, inverse trigonometric functions. So very first we have already discussed about sin inverse x, whose in case of range its domain will be -1 to 1, और डोमेन क्या है इसका, -π/2 to π/2. The next one is cos inverse x, its domain is also -1 to 1 and the corresponding range is 0 to pi. Now the third one is tan inverse x, okay, and the domain of tan inverse x, इसका domain क्या होगा, the domain of tan inverse x is set of real number and the corresponding range is open interval π/2 to π/2. okay, π/2 से π/2 ओपन इंटरवल जो है वो इसका क्या होगा, वो इसका डोमेन होगा, रेंज होगा, सॉरी, ठीक है. नाउ द फोर्थ वन इज कॉसेक इनवर्स एक्स. ओके, सो कॉसेक इनवर्स एक्स रेंज डोमेन क्या है, r -1 to 1, बिकॉज ये इंटरवल को टच ही नहीं करता था, आपको याद आ रहा होगा. एंड द रेंज इज, रेंज जो साइन का है वही इसका रहेगा, -π/2 से π/2, -π/2 to π/2, एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 0 फ्रॉम इट है ना. 0 को हमें हटाना पड़ेगा, वाई, बिकॉज वी ऑल नो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1 cosec x, एंड दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. सो cosec x विल बी 1 sin x.
So if you are putting here 0, then we will get here 0, that is 1 upon 0 will be infinity. So at that point this function is not defined, है ना, cosec x डिफाइन नहीं है तो इसका इन्वर्स भी डिफाइन नहीं होगा. That's why we have eliminated 0 from this particular interval. Okay, now the fifth one is sec inverse x. The range is, domain is same, set of real number में से हमें हटाना पड़ेगा इसे, and the corresponding range is the range of cos. cos की रेंज क्या है बेटा, 0 to pi, तो सेम इसकी भी रेंज होगी between 0 to pi, and we have to eliminate pi by 2 from its range, because at pi by 2 cos is at pi by 2 sec will not define, है ना, because we know that sec x is equal to 1 upon cos x. Okay, and at pi by 2 it gives you cos pi by 2 will 0, so 1 upon 0 will be infinity. So are you getting my point, that at angle pi by 2, at pi by 2 the function sec is not defined, so its inverse will also be not defined. That's why we have eliminated pi by 2 from its range. Okay, now the sixth one is cot inverse x. Okay, so the domain of cot inverse x is R, because हम जानते हैं कि cot x की जो रेंज होती है वही इसका डोमेन बनेगा ना, तो cot x की रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसलिए इसका डोमेन बन जाएगा. एंड द करस्पॉन्डिंग रेंज जो होगी, जो इसकी रेंज है वही रेंज इसकी भी रहेगी. नो, इसकी रेंज डिपेंड करती है cos की रेंज पे, है ना. अगर आपको cos इनवर्स की रेंज पता है तो इसकी भी वही होती है, बस इंटरवल ओपन हो जाएगा बिटवीन 0 to pi. ओके, 0 से लेके कहाँ तक, पाई तक. लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये है, कॉट किसका रेशियो है, कॉस अपॉन साइन का. ठीक है, तो ठीक है, हाँ ये इसकी रेंज हो जाएगी. ठीक, तो यू हैव टू लर्न ऑल दीज रेंज, ठीक है ना. एंड ऑल दीज रेंज आर कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज. आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ऑल दीज रेंज आर कॉल्ड प्रिंसिपल रेंज. ठीक है, because these range are, we get this range by compressing their domain, है ना. इनके जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जब हमने कंप्रेस किया उनके डोमेन को, तब हमें ये इनका इन्वर्स फाइंड आउट करने में हेल्प मिली, बिकॉज वो 1 1 नहीं हो पा रहे थे. तो ये जितने भी रेंज हैं इन सभी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल रेंज, और इन प्रिंसिपल रेंज के अंतर्गत ही हमें इनकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी होती. आई विल डिस्कस इट व्हेन आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस. बहरहाल आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए. These are called to be trigonometric, inverse trigonometric functions, and these are the respective domain of them. ये है domain and these are range. ठीक है ना, these are the domain and these are the range of inverse trigonometric functions, and we have to find out the principal value within the principal range, है ना. जो भी हम principal value find करेंगे वही principal range के अंतर्गत आनी चाहिए. ठीक है, I will discuss it in solving the questions. नाउ आई एम टेकिंग द क्वेश्चंस. ठीक है, ग्राफ आप खुद ही देख लेंगे और हम डिस्कस कर लेंगे इसको गूगल मीट में. ठीक, सो नाउ आई एम सॉल्विंग सम क्वेश्चंस. सो एक्सरसाइज 2.1, exercise 2.1, the very first question. Okay, what we have to do here, find principal value of the following. Find principal value of the following, and the very first is sin inverse minus 1 by 2. Okay, now what we have to do, we have to find out the principal value of this inverse trigonometric function, which is sin inverse minus 1 by 2. As I told you earlier, if we want to find the principal value of this inverse trigonometric function, then we have to look the range of this particular function. ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू, बाय फाइंडिंग द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मीन्स दैट कि हमें -1 by 2 की वो वैल्यू चाहिए इनवर्स के केसेस में जो साइन इनवर्स की रेंज के अंतर्गत लाई करें, है ना. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1 by 2 विच इज एग्जिस्टिंग विद इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू द प्रिंसिपल वैल्यू इज ऑलवेज एग्जिस्ट विद इन द प्रिंसिपल रेंज, एंड दीज आर द प्रिंसिपल रेंज, है ना. ये जो रेंज है यहाँ पे ये प्रिंसिपल रेंज है, या इनको कहीं कहीं पे किसी बुक में प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू भी बोला गया है. तो ये जो रेंज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ये जो रेंज है इनके अंतर्गत, इन्हीं के अंदर जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम इसकी, उसी को हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू, और यू कैन से प्रिंसिपल वैल्यू. ओके, सो to find the principal value of this inverse trigonometric function, the very first step what we have to do, the very first we will equate it
वी विल इक्वेट इट सम कांस्टेंट, सम वेरिएबल, या यू कैन से सम एंगल, है ना। तो हम थीटा के इक्वल ले रहे हैं बिकॉज ये क्या है, एंगल है। सो लेट इट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू थीटा। नाउ ऑपरेटिंग बोथ साइड, ऑपरेटिंग बोथ साइड साइन, है ना, ऑपरेटिंग बोथ साइड साइन, है ना। साइन को हम कहीं कहीं पे ज्या भी पढ़ते हैं। सो नाउ ऑपरेटिंग बोथ साइड साइन, मतलब दोनों ओर साइन को लेने पे, ठीक है। तो जैसे ही हम साइन को दोनों ओर ऑपरेट करेंगे, दिस विल बिकम साइन इनवर्स माइनस 1/2 एंड हियर इज साइन थीटा। नाउ देयर इज अ फॉर्मूला बेटा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा कब होगा, लिसन केयरफुली, साइन इनवर्स थीटा, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली इफ थीटा एग्जिस्ट बिटवीन द रेंज ऑफ साइन। अब बाहर से क्या है, बाहर से साइन है, तो थीटा को कहाँ एग्जिस्ट होना पड़ेगा, थीटा को एग्जिस्ट होना पड़ेगा डोमेन में। किसकी डोमेन में, साइन की डोमेन में। और इसकी डोमेन क्या है बेटा, -π/2 से π/2, ठीक है ना। साइन का डोमेन क्या होता है, साइन का डोमेन होता है -π/2 से π/2 और रेंज होती है -1 to 1। तो अगर साइन इनवर्स थीटा बराबर होगा किसके, थीटा के, इफ द एंगल थीटा इज एग्जिस्टिंग विद इन द डोमेन ऑफ द साइन, और डोमेन क्या है इसका, -π/2 से π/2, ठीक है। सो सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी, इफ थीटा इज एग्जिस्टिंग बिटवीन द रेंज ऑफ साइन, है ना, रेंज नॉट डोमेन। सो -1 to 1 होता है बेटा इसकी रेंज, ठीक है। रेंज क्या होती है साइन की, -1 to 1, ठीक है। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। आप जो भी बाहर से है इसकी रेंज में देखेंगे कि इसकी रेंज में ये जो थीटा है यहाँ पे, ये जो थीटा है यहाँ पे, ये जो बाहर वाला है उसके रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बेटा -1/2 साइन के रेंज में आ रहा है, -1/2 इज एग्जिस्टिंग बिटवीन -1 to 1। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, थीटा, तो यहाँ पे -1/2 है तो -1/2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 इक्वल टू साइन थीटा। ओके, नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, माइनस को ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर। नाउ फोकस ओनली 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6। 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन π/6। नाउ वी अगेन नो, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, देयर इज अ फार्मूला साइन ऑफ नेगेटिव आर्गुमेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन आर्गुमेंट, है ना। इट मीन साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। सो वी कैन से दैट, अगर हम कन्वर्स लें तो माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस साइन थीटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं क्योंकि मेरे पास माइनस साइन थीटा है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा को साइन ऑफ माइनस थीटा, यानी साइन -π/6। ओके, सो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू -π/6। नाउ वी हैव टू चेक whether this angle is existing within the corresponding range of the inverse sin inverse। क्या है जो एंगल मेरे पास आया, जो आर्गुमेंट आया है, ये साइन इनवर्स की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तभी ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अदरवाइज नहीं होगा। तो सी थीटा इज -π/6 और -π/6 इस इंटरवल में ही आ रहा है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। यही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, now the next one, so I already told you what is the principal value beta. I am writing here the definition. By meaning of principal value, what is principal value? Principal value is the principal value of trigonometric, principal value of inverse trigonometric. Okay, we are talking here about inverse trigonometric function. So the principal value of inverse trigonometric function are the value of theta, the value of theta which exists within the range of inverse
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. Okay, got it? What is principal value? Principal value is nothing but principal value of inverse trigonometric function are the value of theta. क्योंकि हम यहाँ पे एंगल की ही बात कर रहे हैं. सो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या है? द वैल्यू ऑफ थीटा विच एग्जिस्टिंग विद इन द रेंज ऑफ द करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. करस्पॉन्डिंग मीन्स वी हैव हियर 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स. तो हमारे पास यहाँ पे 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ओके, सो जब भी प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी तो आप थीटा की वो वैल्यू फाइंड करेंगे जो इन करस्पॉन्डिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज के अंदर लाई करें. ठीक है, जो एंगल थीटा रेंज के अंदर लाई करेगा उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे. ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एक चीज़ तो ये है, सेकंड जो आपको बतानी जरूरी है यहाँ पे वो ये कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है कितना? कॉसेक इनवर्स 1/x, है ना. जैसे कैसे इसको हम प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिए. द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स मीन्स एक्स की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म में, अगर साइन इनवर्स एक्स है तो कॉसेक के टर्म में एक्स क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल. जैसे वहाँ पे क्या होता था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, साइन एक्स कैन बी रिटन एज 1/cosec x. दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. सिमिलर मैनर cosec x इक्वल टू 1/sec x, tan x इक्वल टू 1/cot x एंड cosec tan. या ये हमारे पास वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में होते थे बिकॉज ऑल दीज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर reciprocal to each other. So we can say sin x is equal to 1/cosec x, and in other way we can say cosec x is equal to 1/sin x. In similar manner cos x is equal to 1/sec x and sec x is equal to the reciprocal of cos x. Tan x reciprocal of cot x and cot x is the reciprocal of tan x. But here in case of inverse we just take the reciprocal of angle. हम केवल एंगल का रेसिप्रोकल कर लेते हैं. जैसे साइन इनवर्स एक्स इक्वल होगा किसके? कॉसेक इनवर्स 1/x के, है ना. ऐसी tan इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x. ओके, एंड इन सिमिलर मैनर cos इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स 1/x. ओके, तो इस तरीके से इनके बीच में एक रिलेशन होता है विच वी हैव टू लर्न क्या करना है. मैं इसका एक का प्रूफ बता दे रहा हूँ, वैसे और होंगे, तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ. ठीक है ना, पहला प्रूफ. लेट अस सपोज वी हैव टू प्रूव दैट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, आ रही बात समझ में? सो टेक द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट. लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा. Let sin inverse x is equal to theta. So from here what will be the value of x? Sin inverse उधर शिफ्ट होगा तो कितना मिलेगा? चूंकि इधर ये माइनस में है इसकी पावर, तो यहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी तो मिल जाएगा sin थीटा. So the value of sin थीटा is equal to x. So the value of cosec थीटा कितनी हो जाएगी? यहाँ से cosec थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1/x. Why? Because we know that cosec थीटा is equal to 1/sin थीटा. Okay. So the value of cosec थीटा is equal to 1/sin थीटा, यानी कि 1/x. Now we know वैल्यू ऑफ cosec थीटा इज इक्वल टू कितनी? 1/x. सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी, cosec शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड में, सो इट विल गिव्स यू cosec इनवर्स 1/x. आ रही बात समझ में? साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी थी? थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? cos इनवर्स x. नाउ ऑन कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड you got to know that the value of sin inverse x is equal to value of cosec inverse 1/x. Okay, so pause the video and take the screenshot of it. So now let us take some more questions of exercise 2.1. So question number 1, second part. ठीक है ना, second part, cosec inverse √3/2. Sorry, cos inverse √3/2 and we have to find out the principal value of it. So to find the principal value we have to look what is the range of cosec inverse x. So you can say the range of cosec inverse x is between 0 to pi. So whatever the principal value of cosec inverse √3/2 will be, it will contain within this limit. इसको इस लिमिट के अंदर ही कंटेन करना पड़ेगा, इस इंटरवल के अंदर ही कंटेन करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें √3/2 की वो वैल्यू फाइंड करनी है जो इस इंटरवल के अंदर कंटेन करे. सो व्हाट इज द प्रोसेस? द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव टू पुट इट इक्वल टू थीटा.
और यू कैन से एक्स, चॉइस इज यूअर्स, एक्स वाई थीटा किसी के भी इक्विवेलेंट करेंगे इसे। नेक्स्ट स्टेप, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोथ साइड, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोथ साइड। नाउ अगेन सिंस cos इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, ओके, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा इक्वल होगा थीटा के, कब होगा बेटा, इफ एंड ओनली इफ थीटा लाई विद इन द रेंज ऑफ कॉस एक्स। कॉस की रेंज क्या होगी बेटा, कॉस की रेंज होती क्या है भाई, कॉस की रेंज होती है -1 से 1 के बीच में। नाउ यू कैन चेक √3/2 इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस इट इज़, √3/2 की वैल्यू इसी इंटरवल में आ रही है। सो हम इसको कह सकते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 विल बी √3/2 एंड हियर वी हैव कॉस एक्स, ठीक है, बिकॉज हमने एक्स के इक्वल लिया था। नाउ चेक फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कॉस गिव्स यू √3/2, वही आपका प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स कॉस गिव्स यू √3/2, कॉस की टेबल में आप मेमोराइज करिए कि कॉस की टेबल में ऐसा कौन सा आर्गुमेंट है, ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको √3/2 वैल्यू देता है। तो बेटा 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 पे √3/2 मिलता है। सो √3/2 को हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे किससे, cos 30 विच इज़ रिटन इन रेडियन फॉर्म एज cos π/6। सो cos π/6 इज इक्वल टू cos x, ओके, सो द x विल बी π/6। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक π/6 लाइंग विद इन द इंटरवल और नॉट, कौन सा इंटरवल, द रेंज ऑफ cos इनवर्स x, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है तो प्रिंसिपल वैल्यू वो वैल्यू होगी जो इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में लाई करे, और cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू many times I have tell you that you have to learn the domain and range of trigonometric function as well as the inverse of the trigonometric function। क्योंकि आपको अगर रेंज डोमेन अगर ना भी पता हो तो रेंज एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि करस्पॉन्डिंग रेंज में ही एग्जिस्ट करते हैं इनकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब आप देखिए यहाँ पे जो π/6 है वो 0 से π के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई π/6 विल बी द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √3/2। पॉज द वीडियो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, now the next question, next cosec inverse 2, next question we have is cosec inverse 2। now see dear student, this is given in form of cosec, so you have two choice, आपके पास दो चॉइस हैं, whether you can take it with cosec inverse 2, cosec inverse 2 के साथ ही इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, और the another choice is I have given you a formula that sin inverse x is equal to cosec इनवर्स 1/x, है ना, ये फार्मूला बताया था भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले। तो इस फार्मूले को अगर हम यूटिलाइज करें तो क्या हो जाएगा, ये cosec इनवर्स 1/x इक्वल टू किसके है, sin इनवर्स x के। तो बेटा cosec इनवर्स 2 किसके हो जाएगा, फिर sin इनवर्स में रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, 2 का रेसिप्रोकल यानी 1/2, ठीक। So now if you are talking about the principal value of cosec inverse 2, it means that you are talking about the principal value of sin inverse 1/2, क्योंकि ये दोनों अलग नहीं सेम ही हैं। sin inverse 1/2 will equivalent to cosec inverse 2, है ना, हमने बाय द फार्मूला इसको चेंज कर दिया, कौन से फार्मूले से, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपको मान लीजिए cosec इनवर्स की रेंज नहीं पता तो आपको साइन की पता है, तो साइन में कन्वर्ट करके साइन की रेंज के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, ठीक है। तो cosec इनवर्स 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ साइन इनवर्स, साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में, ये प्रिंसिपल रेंज है इनकी। तो जो भी प्रिंसिपल वैल्यू होगी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है, वो इसकी रेंज में एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, वी विल इक्वेट इट टू सम कॉन्स्टेंट, सम वेरिएबल थीटा या एक्स, जो भी आप कर लें। सो हमने इसको थीटा के इक्वल रख लिया। नाउ ऑपरेटिंग साइन बोथ साइड, दोनों ओर साइन ऑपरेट करेंगे, तो साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू साइन थीटा, वी हैव ऑपरेटेड साइन बोथ साइड। नाउ सी साइन इनवर्स साइन थीटा, अगेन वी अप्लाई द फॉर्मूला दैट साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा विल बी इक्वल टू थीटा इफ एंड ओनली इफ थीटा एग्जिस्ट विद इन द रेंज ऑफ साइन। अब साइन की रेंज क्या होती है भाई, साइन की रेंज होती है बेटा -1 से 1, ठीक है ना। तो -1 से 1 साइन की रेंज है, ठीक है ना। अब आप देखिए आपका 1/2 इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस 1/2 इज एग्जिस्टिंग बिटवीन दिस इंटरवल। सो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा के, यानी थीटा की जगह यहाँ 1/2, सो 1/2 के बराबर हो जाएगा, और इधर है आपके पास साइन थीटा। नाउ द सेकेंड स्टेप इज, नाउ कंसीडर
फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा साइन गिव्स यू 1/2, थीटा की किस वैल्यू के लिए साइन के टेबल में आपको 1/2 वैल्यू मिलती है, तो किस पे मिलती है 30 पे। सो वी कैन रिप्लेस 1/2 एज साइन π/6, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 को रिप्लेस कर दिया साइन π/6 से, और राइट हैंड साइड में आपके पास साइन थीटा, सो द वैल्यू ऑफ थीटा विल बी π/6। नाउ यू कैन ऑल्सो चेक वेदर π/6 इज एग्जिस्टिंग विद इन द रेंज ऑफ साइन इनवर्स और नॉट। तो साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से π/2, और आप देख सकते हैं कि इसकी रेंज में ही एग्जिस्ट कर रहा है। आई बात समझ में, π/6 इसी की रेंज में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosine inverse 2. Okay, pause the video and take the screenshot of it. So dear student, I have solved 3 questions and there are many more questions in this exercise. ठीक है, the homework for you is that you have to make the graph of inverse trigonometric function in your fair notebook, and you have to do example first and second, and if you will be able to try some questions from your exercise 2.1, then you can go ahead. Okay, so till then, bye bye, take care, meet you in next Google Meet.